Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, Assalamu alaikum. I hope you are all fine. Now we are going to discuss important essay of E.M. Foster, Does Culture Matters? Part of our prose. First of all, we will see a little introduction about E.M. Foster. Actually, his full name is Edward Morgan Foster. He was born on January 1st, 1879 in London, England, and died on June 7, 1970. He was a British novelist, essayist, social and literary critic. He criticized on the social sides of and social ills of the society, and his fame rests largely on his novel Howard's End, which he wrote in 1910, and A Passage to India. This book also included in our syllabus. We will read it in the final year in the novel. And on large body of criticism, and he wrote many other books on the criticism and social and the literary side, but his most famous book that we will cover in final year, Passage to India. Now what he say about culture, why culture is important, or why people are forgetting the culture. The essay that we are going to discuss, Does Culture Matter? Basically, this essay is taken from Two Cheers for Democracy, in which this essay was published. The writer wants to explain his ideas about culture, tradition that we have inherited from the past, wealth of artistic treasure in form of book, music, and painting, but these objects of culture are losing a credit today, and now most of people go after cheap amusement. So the essay that we are going to discuss, does culture matter? In this essay he want to shed a light that why people are forgetting the culture, and what are the importance of the culture, what kind of the heritage, what kind of the some cultural roots we have, we got from our ancestors. But in the margin people, they are forgetting that what we have, what we got from our ancestors, especially when we see the cultural heritage that we have different forms, especially the music, the book, and painting. Now these all things people are forgetting, and they are just going behind these cheap fame and cheap amusement, and they are forgetting the real essence of these all things of the cultural. When he started that essay, initially he discussed that culture is a forbidding word. He thinks that mostly people are forgetting the culture, especially the beautiful and interesting objects which men have made in the past. जो पास्ट में कल्चरल वैल्यूज़ थे, कल्चरल प्रिंसिपल थे, या जो कल्चरल हेरिटेज, स्पेशली म्यूज़िक, पोइट्री, पेंटिंग, अब ये सारी चीज़ें इस मॉडर्न लोगों को यही लगती कि दीज आर ऑल द यूजलेस, दीज आर फ्यूटाइल थिंग, दीज आर आउटडेटेड एंड ऑब्सोलीट थिंग्स. अब इन सारी चीज़ों की कोई मॉडर्न वर्ल्ड में कोई स्पेस नहीं है, कोई रूम. सो देयरफॉर ही थिंक दैट कल्चर इज़ अ फॉरबिडिंग word. Many people despise their cultural values, cultural heritage, like poetry, music, and painting. They argue with force that cultural stuff takes a great deal of room and time. The culture जो stuff है, cultural heritage, cultural values, culture चाहे वो physically हो, physical shape में, especially जो हमारे हेरिटेज हैं, या जो हमारा अटायर है, या जो हमारे पास पेंटिंग है, या जो हमारे पास लिटरेरी ट्रेयर है, नावल, या हमारे पास आर्टिस्टिक क्रिएशन, पेंटिंग. अब ये सारी चीज़ें, इनके एक स्पेस चाहिए, एक रूम मॉडर्न चाहिए. ये दे आर टेकिंग टू मच टाइम. तो अब इस साइंटिफिक इरा में इन चीज़ों की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है. देयरफॉर पीपल आर फॉरगेटिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ द कल्चर ऑफ आवर एंसेस्टर्स, जो हमें पास्ट से मिला है. We live
In a new world which has been wiped clean by science and cannot profit by tradition, अब जिस दौर में हम रह रहे हैं, the society in which we are living, in the world in which we are living is a world of the science. And actually science has cleaned all the the ills of the society and all the tradition. अब हम बिल्कुल एक ऐसे साइंटिफिक एक इंडस्ट्रियल जोन में आ गए हैं जहाँ पर हमारे यहाँ जो हमारे कल्चरल वैल्यूज़ हैं, जो कल्चर की जो इम्पोर्टेंस है वो बिल्कुल डिक्रीज़ होती जा रही है। अब आसा जो कल्चरल हेरिटेज की इम्पोर्टेंस, जो पेंटिंग थी, जो हमारे पास ये म्यूज़िक था, अब वो सारी चीज़ें आस्ते आस्ते उनकी जो इसेंस, जो उसकी इम्पोर्टेंस है सोसाइटी में, वो डिक्रीज़ होती जा रही है जिस सोसाइटी में है, क्योंकि वो साइंस की सोसाइटी है। साइंस की सोसाइटी में या वर्ल्ड ऑफ द साइंस में वी आर एम्फेसाइजिंग ऑन द अवर मटेरियल ग्रोथ, जो हमारे पास मटेरियल ग्रोथ है उस पर ही ज़्यादा फोकस करते हैं। देखिए हमारे पास काफ़ी ऐसे चीज़ें थी जो हमारे एंसेस्टर फॉलो करते थे, चाहे वो हमारे यहाँ वो बर्तन हो। अब मॉडर्न टाइम में जब इंडस्ट्री आ गई है तो इंडस्ट्रियल जोन में सारी चीज़ें चेंज हो गई है। जो कभी आप हाथ से बनाते थे अब वो सारी इंडस्ट्री बना रही है, तो उसका नतीजा ये है कि उन चीज़ों की वैल्यू डिक्रीज़ होती जा रही है। एंड जो ट्रेडिशन है, जो वैल्यूज़ हैं हम एंसेस्टर से गेन कर रहे हैं, उनकी अब इस मॉडर्न टाइम में कोई वैल्यू नहीं है, कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। मूविंग अहेड, broadcasting and cinema have wiped out drama, and quite soon we may hope for some new invention which will वाइप आउट द सिनेमा इंडस्ट्री एंड ब्रॉडकास्टिंग। किसी ज़माने में हमारे पास ट्रेडिशनल ये कन्वेंशनल सिंगर होते थे, या हमारे पास जो फोक लोर था, जो गलियों में या किसी ऐसे फंक्शन पे जो लोग थे वो ओरली वो सिंग करते थे। अब वो सारी चीज़ें जो ड्रामा किसी ज़माने में हमारे यहाँ थिएटर में प्ले किया जाता था, अब वो सारी चीज़ें ऑब्सलीट हो जाती हैं, क्योंकि हमारे पास एक वर्ल्ड ऑफ साइंस आ गई है। हम साइंस के ज़माने में हैं, तो साइंस का नतीजा ये है हमारे पास ब्रॉडकास्टिंग, अब रेडियो आ गया है। जो सिंगर गलियों में या किसी देहात में, गांव में जाकर वो सिंगिंग करते थे, वहाँ से जो उनको कुछ प्रॉफिट मिलता था, अब वो आस्ता आस्ता चीज़ें शिफ्ट हो रही हैं इस इंडस्ट्रियल और साइंटिफिक ग्रोथ की वजह से ब्रॉडकास्टिंग की तरफ, सिनेमा की तरफ। जो ड्रामा थिएटर में प्ले किया जाता था, वो जो डायलॉग आप डिलीवरी रियली देखते हैं, अब वो सारी एक शूट होकर एक सिनेमा में एक पर्दे पे आ गई है। अब वो जो थिएटर है वो आस्ता आस्ता ख़त्म हो गया। अब ब्रॉडकास्टिंग हाउस का, रेडियो का, टीवी का, वो सिनेमा का ज़माना आ गया है। इनकी वजह ये है, इनका नतीजा, इन द रिज़ल्ट वी लॉस द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस थिएटर, वी लॉस इम्पोर्टेंस ऑफ द स्टेज प्ले, इन द वी लॉस इम्पोर्टेंस दोज पीपल हु सिंग इन दीज स्ट्रीट, इन द विलेज, इन डिफरेंट साइड। अब वो आस्ता आस्ता उनकी जो वैल्यू है वो डिक्रीज़ होती जा रही है। हो सकता है जिस तरह हम साइंटिफिक ग्रोथ, साइंटिफिक पेस के साथ या उसके रेस के साथ चल रहे हैं, हो सकता है ये साइंटिफिक ग्रोथ, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हमारे यहाँ ये ब्रॉडकास्टिंग भी ख़त्म हो जाए और ड्रामा भी ख़त्म हो जाए। डेफिनेटली इफ़ यू सी इन मॉडर्न टाइम, अब इस ज़माने में कंपेयर करें तो हमारे यहाँ रेडियो की जो अहमियत किसी ज़माने में बड़ी होती थी, अब वो आस्ता आस्ता डिक्रीज़ होती जाइए। हमारे पास सेल फ़ोन, मोबाइल फ़ोन है। हमारे यहाँ किसी ज़माने में टीवी की भी इम्पोर्टेंस थी, ठीक है, वाइट टीवी, उसके बाद हमारे पास कलर टीवी आ गई, तो वाइट टीवी की इम्पोर्टेंस कम हो गई। अब हमारे पास ये कलर टीवी आ गई। वो टीवी, इवन दो टीवी आल्सो ऑब्सलीट, अब हमारे पास मोबाइल फ़ोन, हर चीज़, आप रेडियो भी उसका है आपके पास, मतलब आप हर चीज़ आप अपने मोबाइल फ़ोन, एक स्मार्टफोन से। सो देखें अब ये आस्ता आस्ता जो आपकी डेवलपमेंट है, इन चीज़ों को ऑब्सलीट, आउटडेट बना दें, उनकी जो इम्पोर्टेंस है आपके कल्चर में, आपकी सोसाइटी में, वो डिक्रीज़ होती जा रही है। अब ये एग्जाम्पल कोड करता है इसी ऐसे में, डज कल्चर मैटर में, सर रिचर्ड टेरे द ऑर्गेनिस्ट ऑफ वेस्टमिंस्टर कैथेड्रल, ठीक है, ऑर्गेनिस्ट वो जो चर्च में गाते थे या सिंगिंग करते थे, उनको ही उन्होंने ये कहा है। कैथेड्रल एक चर्च था। सर रिचर्ड टेरे स्पेशलिटी मेड गर्ल्स, ये जो मेड रिगर्ल्स है ये एक सिंगिंग थी। जो सर रिचर्ड टेरे था वो जाके चर्च में गाता था। उनकी जो फेमस कंपोजिशन थी, म्यूज़िकल कंपोजिशन, वो मेड रिगर्ल्स थी। वो जो जाकर स्पेशली जब चर्च में कोई ऐसा फंक्शन होता था या इवेंट होता था तो वो वहाँ पर जाकर गाते थे। जैसे हमारे यहाँ काफ़ी होली सिंग, मतलब होली जो होते हैं कुछ, मतलब जी कसीदा वगैरह इस टाइप का, वो उसकी जो फेमस कंपोजिशन थी मेड रिगर्स, वो सर रिचर्ड टेरे की हो गई थी।
ये जो मेड रिगल्स थी उसकी कंपोजिशन या जो जाकर सिंगिंग करता था चर्च में, दैट वाज द रियल म्यूज़िक, दैट वाज द रियल चार्म ऑफ द म्यूज़िक। उनका जो पूरा बैंड, उसका पूरा ग्रुप जो बैठकर इस चर्च में जो सिंगिंग करता था, उनकी हमारे यहाँ बड़ी वैल्यू होती थी, उनके लिए इम्पोर्टेंस थी। आस्ता आस्ता अब उन चीज़ों को भी पीपल आर फॉरगेटिंग इट, वो कहते हैं कि भाई ये टाइमलेस है, क्योंकि अब आप हमारे पास ब्रॉडकास्टिंग है, सिनेमा है, वो हमें रिकॉर्डेड चीज़ मिल रही है, तो हम क्यों चर्च में जाएं उस चीज़ को देखने के लिए, क्यों चर्च को परफॉर्मेंस, चर्च में जो सर रिचर्ड टेरे है उनकी कंपोजिशन मैड्रिगल्स को सुने। इफ़ वी हैव द रिकॉर्डर डेफिनेटली वी प्ले ऑन द चर्च एंड वी विल हेयर दिस म्यूज़िक वट एवर। अब इसकी जो वैल्यू है आस्ता आस्ता वो भी डिक्रीज़ होती जा रही है। इट आर टू बी डिफेंडेड, अब हमें इस चीज़ों को प्रिजर्व करना चाहिए। वी हैव टू डिफेंड इट, वी हैव टू प्रिजर्व इट। इन चीज़ों की अब भी हमारे यहाँ वैल्यू है, आज भी उसकी इम्पोर्टेंस है। दीज थिंग आर नॉट आउटडेट और ऑब्सोलीट, वी हैव टू प्रिजर्व दीज थिंग। दीज आर आवर कल्चरल हेरिटेज, दीज आर आवर कल्चरल रूट्स। ये हमारे पास के जो कल्चरल रूट्स हैं ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। So we have to defend it and we have to preserve it in our society. Moving ahead. Of course, most people never have care for the classic. डेफिनेटली हमारे यहाँ काफ़ी ऐसे लोग हैं हमारी सोसाइटी में जो क्लासिकल म्यूज़िक हो, क्लासिकल कल्चरल वैल्यूज़ हो या क्लासिक लोग हो, अब उन चीज़ों को आस्ता आस्ता लोग भूल रहे हैं। उनकी जो वैल्यू है उन लोगों के नज़र में वो डिक्रीज़ होती जा रही है। वी हैव फॉरगॉटन द इम्पोर्टेंस एंड एसेंस ऑफ एंड अम्यूज़मेंट ऑफ द क्लासिक। इधर वो म्यूज़िक हो, पोइट्री हो या क्लासिकल लोगों के जो वैल्यूज़ हों या क्लासिकल हेरिटेज हो। अब इन मॉडर्न वर्ल्ड ऑफ साइंटिफिक में, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल ग्रोथ में आस्ता आस्ता वो चीज़ें डिक्रीज़ हो रही हैं, उनकी जो वैल्यू हैं वो भी डिक्रीज़ हो रही हैं। दीज थिंग्स आर बिकम ऑब्सोलीट एंड आउटडेटेड. We have in this age of unrest, definitely we are in the age of unrest. अगर हम अपने ही दौर को देखेंगे, हम अनरेस्ट में, हम कंपटीशन में हैं कि वो फलां बंदा आगे जा रहा है या ये चीज़ें न्यू आ रही हैं। सडनली एक एक्सप्लोजन होता है आपकी सोसाइटी में, आप बिल्कुल एक अनरेस्ट में हो जाते हैं। साइंटिफिक रहा है, साइंटिफिक ग्रोथ है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, तो पीपल इन रेस में हैं कि ज़्यादा जो इनका फोकस है वो सिर्फ चीप अम्यूज़मेंट में है, दिखावे पे ज़्यादा है, लेकिन जो रियल प्ले या रियल एसेंस वो नहीं है। To fury much old stuff across the river, and old stuff not merely a book, picture and music but the power to enjoy and understand them. हमारे यहाँ स्टफ़ को प्रिजर्व नहीं किया जाए कि ये हमारे एंसेस्टर का स्टफ़ है कि उनकी ये जो पेंटिंग थी वो फ़लाँ ज़माने की थी, फ़लाँ टाइम में ये था। अब ये जो पिक्चर है उन्होंने बनाई थी या जो बुक है उन्होंने लिखा था। पास्ट का मतलब आप सिर्फ इनको अपने किसी अलमारी की शेल्फ में या किसी लाइब्रेरी में या किसी म्यूज़ियम में ना रखें। यू हैव टू अंडरस्टैंड देम, यू हैव टू एंजॉय देम एंड यू हैव टू रीड देम। अगर पेंटिंग है तो उसकी जो क्रिएटिविटी आप उसको अप्रिशिएट करें, आप उसको देखें। अगर आपके पास बुक है, कोई पास का कोई क्रिएटिविटी, यू हैव टू नॉट प्रिजर्व इट ओनली बट यू हैव टू एंजॉय इट एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड कि उनमें क्या लिखा है। अब ये चीज़ें आप सिर्फ प्रिजर्व करके ना रखें, यू हैव टू एंजॉय द रियल प्लेयर एंड द रियल एसेंस ऑफ दैट बुक्स आर दैट क्रिएटेड। ये आपके सिर्फ एक अजायब घर के लिए में न हो, लेकिन यू हैव टू रीड इट एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड. Okay, moving ahead. The power was acquired through tradition. Definitely, the enjoying these books or enjoying the cultural heritage or enjoying the real, the essence of these painting. We have to guard this player फ्राम ट्रेडिशन। उस कल्चरल वैल्यूज़ में जहाँ हमारे बड़े या हमारे एंसेस्टर थे, वो जो जिस तरह वो एंजॉय करते थे इन चीज़ों को, ये सारी एंजॉयमेंट का जो एसेंस है वो हमें हमारे ट्रेडिशन, हमारी सिविलाइजेशन से हमें मिलेगा। एक एग्ज़ाम्पल कोट करता है बुक जो लिखा हुआ है मिसेस लुइस का, बेबिट में मिसेस लुइस क्या डिस्क्राइब करती है स्पेशली सिविलाइजेशन के बारे में।
उनका जो अपना नज़रिया है सिविलाइजेशन के बारे में वो क्या है, वो ये अपने ऐसे में डिस्कस करता है। सिविलाइजेशन हैड नो ट्रेडिशन, उनमें कोई ट्रेडिशन मीन्स जो पास ट्रेडिशन है वो नहीं होगी जो एंसेस्टर से मिली है, या कोई भी ऐसा कल्चरल हेरिटेज है या जो पास्ट के जो कल्चरल वैल्यूज़ एंड प्रिंसिपल हैं वो आपको मॉडर्न सिविलाइजेशन में नहीं मिलेंगी। एंड कुछ कॉन्सिक्वेंटली ओनली वर्क और अम्यूज इटसेल्फ विथ अ रबिश, उनके पास जो अम्यूज़मेंट का या कल्चर इंजॉय करने का जो होगा वो एक कॉस्मोपॉलिटन कल्चर होगा, रबिश कल्चर। देयर इज़ नो एसेंस ऑफ द रियल कल्चर, वो एक कम्युनिटी का कल्चर नहीं मिलेगा, लेकिन आपको एक इंटरनेशनल कल्चर, एक कॉस्मोपॉलिटन कल्चर मिलेगा, जिसमें क्योंकि कल्चर आपकी जो आइडेंटिटी होती है, जो कल्चरल वैल्यूज़ आपकी आइडेंटिटी होती है, जो थ्रू आउट आप एक नस्ल से दूसरे नस्ल तक शिफ्ट होती हैं। आप अगर मॉडर्न ट्रेडिशन में देखेंगे कि वो एक रबिश चीज़ों के पीछे एक रबिश स्टफ की तरफ होंगे, उनमें कोई रियल एसेंस नहीं मिलेगा जो नस्ल दर नस्ल ट्रांसफर्ड होता रहता है। इट हैड हेड ऑफ द पास्ट बट लेक द पावर टू इन्जॉय इट और नेशन, उनके पास कुछ रूट्स डेफिनेटली होंगे जो पास से आई होंगे। ये नहीं होगा कि कम्प्लीटली आप अपने एंसेस्टर का कल्चर भूल गए या उनको कोई रूट्स नहीं, डेफिनेटली ये कुछ चीज़ें, कुछ वैल्यूज़, कुछ प्रिंसिपल, कुछ कल्चर हेरिटेज एक नस्ल से दूसरे नस्ल की तरफ शिफ्ट होते हैं। अब वो चाहे पेंटिंग के फॉर्म में हो, चाहे वो आपके पास पोइट्री के फॉर्म में हो, चाहे आपके पास किसी ऐसी क्रिएटिविटी के में हो, या कोई ऐसे मतलब शाहूकार की बिल्डिंग हो, अगर वो आपकी कल्चरल हेरिटेज में डेफिनेटली आपके पास मॉडर्न सिविलाइजेशन में होगी, लेकिन आपको सिर्फ उसको प्रिजर्व करके रखेंगे, लेकिन जो अंडरस्टैंड या उन चीज़ों को एंजॉय करने की जो आपकी एबिलिटी है वो आस्ते आस्ते डिक्रीज़ होती जाएगी। आप उन चीज़ों को सिर्फ एज ए कल्चरल हेरिटेज के तौर पर रखेंगे, लेकिन उनकी जो प्ले या उन चीज़ों को समझ के नहीं, वो एंजॉयमेंट ख़त्म हो जाएगी। If people are giving him up, it is a sign that they are throwing culture overboard. अगर वो लोग अपने कल्चर को गिव अप कर देते हैं, अपने कल्चरल वैल्यूज़ को, कल्चरल ट्रेडिशन को गिव अप कर देते हैं, तो इट्स साइन दैट दे आर throwing the culture owing to roughness of the water and will reach the further banks in since Dante, since Shakespeare and since everything। अगर कल्चरल वैल्यूज़ में आप देखें, डांटे जैसे बंदे के लिए कोई स्पेस नहीं है, डांटे उस कल्चर से चला गया, शेक्सपियर चला गया, या सिंस एवरीथिंग, अगर ये चीज़ें आपके कल्चर में नहीं, आप समझते हैं कि डांटे तो पास्ट का था, अगर शेक्सपियर था तो पास्ट का था, उनकी जो रिफ्लेक्शन है उनके वर्क में वो उन पास्ट की है, उनकी अब इन मॉडर्न टाइम में कोई स्पेस नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। फॉर इंस्टेंस अगर हम में से कोई के अब जो बेटा ये लतीफ़ है, लतीफ़ की जो फ़िलासफ़ी है, टीचिंग है, उनका अब इस ज़माने में क्या वजह, हम साइंटिफिक एरा में रहे, हमारे पास डिजिटलाइजेशन है, हम डिजिटल ऑटोक्रेसी के लोग हैं, हमारे पास मोबाइल फ़ोन है, स्मार्ट टेक्नोलॉजी आ गई है, हम जिस रेवोल्यूशन में, वो एक फिंगर टिप्स का रेवोल्यूशन है। अब लतीफ़ की इस मॉडर्न टाइम में क्या इंपॉर्टेंस है अगर हम कहेंगे, तो मीन्स आप अपने कल्चर को गिव अप कर रहे हैं। आप कहेंगे हमारे यहाँ जो हमारी ट्रेडिशनल जो कल्चरल वैल्यू है उनकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, तो आस्ता आप ये समझें कि आपकी जो सारे वैल्यूज़ हैं वो आस्ता ख़त्म हो रहे हैं। Okay, moving ahead. If you drop tradition and culture, you lose your chance of connecting work and play and creating a life which is all of peace। अगर आपके पास वो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ गायब हो जाते हैं, ट्रेडिशनल इसेंस ऑफ कल्चर अगर गायब हो जाता, ख़त्म हो जाता है, तो आप ये समझें जो ज़िंदगी को एंजॉय करने के लिए आपके पास एक ज़रिया था, एक सोर्स था सारे कल्चरल हेरिटेज का, वो ख़त्म हो जाएगा। आपकी जो पीसफुल लाइफ है वो ख़त्म हो जाएगी। यू बिकम इन अनरेस्ट, वहाँ आपके पास एक अनरेस्ट होगी, एक ऐसी अनरेस्ट जो में सिर्फ आपके पास कंपटीशन होगा, लेकिन जो रियल चार्म ऑफ लाइफ बिकम ऑब्सलीट, आपके पास वो रियल चार्म ख़त्म होता जाएगा। कल्टिवेटेड पीपल आर अ ड्रॉप ऑफ इंक इन द ओशन, जो कल्टिवेटेड जो सिविलाइज्ड पीपल होते हैं एक बूंद की तरह होते हैं किसी दरिया में, किसी समंदर में।
दे मिक्स इजीली एंड इवन जेन्युइनली विथ अदर ड्रॉप्स, वो इजीली एंड मिक्स हो जाते हैं अदर ड्रॉप्स। देखिए हमारे यहाँ ये होता है, अगर कोई कल्टीवेटेड पीपल होता है तो सोसाइटी में मिक्स हो जाए, जैसे कोई ड्रॉप ऑफ द वाटर मिक्स इन द ओशन, ड्रॉप ऑफ वाटर मिक्स इन द और इंक इन द ओशन। अगर देखिए कल्टीवेटेड पीपल और ड्रॉप ऑफ इंक इन द ओशन, अगर वो इंक अगर आप ओशन में उसका ड्रॉप हो जाए तो इजीली इट्स मिक्स विद द वाटर ऑफ द ओशन। तो इस तरह जो कल्टीवेटेड पीपल है, इफ़ यू सिविलाइज पीपल, यू शुड मिक्स विद अदर पीपल विद अदर सोसाइटी। They mix easily and even generally with other drops, definitely. For those exclusive days are over when cultivated people made only cultivated friends. किसी ज़माने में हमारे यहाँ ये परसेप्शन होती है कि भाई ये फ़लाँ बंदा तो मेरे लेवल का है, ये तो फ़लाँ बंदा मेरे लेवल का नहीं है, मैं मतलब आई एम वेरी रिच, आई एम वेरी इंटेलेक्चुअल, ये तो मेरे लेवल का ही नहीं है। लेकिन ये किसी ज़माने में परसेप्शन थी, इवन उनके कल्चर में थी, लेकिन हमारे यहाँ भी वही सेम परसेप्शन हमारे यहाँ सेम परसेप्शन हमारे यहाँ सेम परसेप्शन हमारे यहाँ कल्चर में थी, वो सेम वैल्यूज़ हमारे यहाँ आज भी हैं। इफ़ इवन टुडे वी आर सीइंग दैट यार ये तो फ़लान बंदा मेरे लेवल का ही नहीं है, मैं तो आई एम वेरी इंटेलेक्चुअल। ये सेम परसेप्शन उस ज़माने में थी, लेकिन अगर वो कल्टिवेटेड सिविलाइज्ड पीपल, ही शुड मिक्स अप लाइक इंक इन द ओशन।